اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان شروع کرنے سے پہلے پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب اور اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے کہ آج ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ معراج شریف ہے، شب معراج ہے، جو کہ آج ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرش پر گئے تھے اور ہمارے اللہ تعالیٰ کے دیدار کیے تھے۔ تو آج شب معراج کے وقت، آج شب معراج کی رات، کئی سال پہلے آج شب معراج کی رات ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی بہن ام ہانی مولا علی کی وہ سگی بہن ہے، وہ مولا علی کی وہ سگی بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آرام فرما رہے تھے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر آرام فرما رہے تھے۔ تو ہمارے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے کہا، اے جبریل جاؤ جا کر میرے محبوب سے کہو، اے جبریل جاؤ جا کر میرے محبوب سے کہو کہ اللہ ان کا طلبگار، اللہ ان کے دیدار کے طلبگار ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دیدار کے طلبگار ہے۔ اے جبریل جا کر میرے حبیب سے کہو کہ اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، جاؤ جا کر میرے حبیب کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جبریل علیہ السلام جو سب اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے، جس طرح ہمارے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ جو ہمارے خدا ہے، رحمان و رحیم ہے، ارمان و امین ہے، ارمان و امین ہے، جو 70 معاون سے بھی زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے، اپنے محبوب کے لیے عرش بری اس طرح سجایا، اپنے محبوب کے صدقے تمام عرش محلہ، عرش زمین سب نور کو لٹا کر عرش بری کو سجایا۔ جبریل علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ، اللہ ان کے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، جاؤ جا کر میرے حبیب کو لے کر آؤ۔ جبریل علیہ السلام جو پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں ام ہانی کے گھر پر جہاں ہمارے پیارے نبی آرام فرما رہے تھے، وہاں ہمارے جبریل علیہ السلام آتے۔ جبریل علیہ السلام کے ساتھ 3 فرشتے آتے، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام۔ 3 فرشتے جبریل علیہ السلام کے آتے ہیں، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام۔ ہر ایک فرشتے کے ساتھ اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے بھیجے تھے، ہر ایک فرشتے کے ساتھ اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے بھیجے تھے۔ جبریل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے، میکائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے، اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے، 2.25 لاکھ فرشتوں کے ساتھ جبریل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی چھت پر آئے۔ جس طرح کے گھر کے چھت ہے، اس دور میں اس طرح کے گھر کے چھت نہیں ہوا کرتے، اس دور میں لکڑی کی چھت ہوا کرتے تھے، جیسے کہ اگر کوئی ضعیف گھر میں سو رہے تھے کہ کوئی آدمی بھی اس چھت پہ سے اگر گزرتا تو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی چھت پہ سے گزر رہا ہے۔ اس دور میں اور لکڑی کی چھت پہ جبریل علیہ السلام 2.25 لاکھ فرشتوں کو لے کر اس چھت پر کھڑے اور چھت کا کچھ حصہ کھولتے اور اس میں سے دیکھتے تو ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ آرام فرما رہے تھے تو جبریل علیہ السلام سوچتے ہیں کہ مشورہ کرتے، پیارے میکائیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام سے جبریل علیہ السلام مشورہ کرتے کہ پیارے نبی تو سو رہے، انہیں کس طرح جگائے جائے، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح جگائے جائے۔ تو جبریل علیہ السلام مشورہ کرنے کے بعد جو ہے حضور کے چھت سے جو ہے سو جھکتے ہیں، جھک کر جو ہے سو حضور کے قدم مبارک کو چومتے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو جبریل علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو جبریل علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا۔ جی نہیں،
حضور کو جبریل علیہ السلام نے سجدہ نہیں کیا تھا. حضور کو جبریل علیہ السلام کے جو سر پہ جو جبریل علیہ السلام کا جو تاج تھا وہ تاج کے موتی حضور کو سجدہ کرے تھے. حضور جبریل علیہ السلام کے جو سر پہ تاج تھا وہ تاج پہ جو موتی تھے وہ حضور کو سجدہ کرے اور جبریل علیہ السلام حضور کے قدم مبارک کو چوم رہے تھے. جب حضور کے قدم مبارک پہ جیسے جبریل علیہ السلام نے چوما حضور کی آنکھ کھولے تو حضور نے کہا دیکھیے حضور نے کہا کہ جی ہاں میں نے پہچان لیا جبریل آپ ہیں, میں نے پہچان لیا جبریل. جیسے ہی آپ آنکھ کھولتے ہیں تو حضور دیکھتے تو جبریل علیہ السلام ہے. تو آپ جبریل علیہ السلام پوچھتے حضور آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں ہوں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے اے جبریل میرے آنکھ سو رہے تھے لیکن میرا دل ہمیشہ زندہ رہتا ہے, میرا دل ہمیشہ جاگتے رہتا ہے. صرف اور صرف میرے آنکھ سوتے ہیں, میرا دل ہمیشہ جاگتے رہتا ہے. یہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے. دیکھیں حضور کی آنکھ سوتے لیکن حضور کا دل نہیں سوتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کیسے دیکھتے ہیں, حضور کس طرح سنتے ہیں. دیکھیے حضور کی آنکھ سوتے لیکن حضور کا دل نہیں سوتا. حضور کا دل سب کچھ دیکھتا ہے. کیا بتاؤں اس آقا کے بارے میں, کیا بتاؤں اس اللہ کے محبوب کے بارے میں, کیا بتاؤں اس اللہ کے محبوب کے بارے میں. جبریل علیہ السلام جب چھت پہ نیچے اترتے ہیں حضور کی جگہ, حضور جب جاگتے ہیں تو سلام کرتے, سلام کر کر قدم مبارک کو چومتے اور چوم کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرماتے اے پیارے نبی, اے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں, اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کہتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ریڈی ہو جاتے ہیں. تو جبریل علیہ السلام جو ہے حضور کا گلے سے لے کے ناف تک حضور کا سینہ کھولتے ہیں, گلے سے لے کے ناف تک حضور کے جو جسم مبارک کو پھاڑتے ہیں, پھاڑ کر حضور کا دل نکالتے ہیں. گلے سے لے کے ناف تک حضور کا جسم پھاڑتے اور پھاڑ کر حضور کا دل نکالتے. حضور کا دل نکال کر آب زمزم میں دھوتے, حضور کا دل نکال کر آب زمزم میں دھوتے, دھو کر حضور کا دل سینے میں بٹھاتے, حضور کا دل سینے میں بٹھاتے. جبریل علیہ السلام نے آب زمزم سے دل اس لیے نہیں دھویا تھا کہ حضور کے دل کو برکت حاصل ہو. جبریل علیہ السلام نے آب زمزم میں دل اس لیے نہیں دھویا تھا کہ حضور کے دل کو برکت حاصل ہو. جبریل علیہ السلام نے آب زمزم کو اس لیے دھویا تھا کہ حضور کے دل سے آب زمزم کو برکت حاصل ہو, حضور کے دل سے آب زمزم کو برکت حاصل ہو. اس لیے آب زمزم میں حضور کے دل کو دھویا. حضور کا دل جب سینے میں بٹھا دیے حضور کو غسل دیا گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے جب حضور کو غسل دیا گیا تھا تو کچھ پانی تاروں نے لے لیا, تاروں اور چاند نے لیا. آج جو تارے اور ستارے چمکتے وہ حضور کے پانی سے چمکتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بچا جو تیرے تلووں کا دھوبن, وہ جنا ہے جو بچا ہے تیرے تلووں کا دھوبن, وہ بنا ہے جنت کا رنگ و روبن. جو آب زمزم جو جنت کا رنگ و رحمن کہتے جس سے جبریل علیہ السلام نے جو ہے سو آب زمزم سے حضور کا دل دھویا تھا. کچھ پانی تاروں نے اٹھا لیا اور کچھ پانی آب زمزم میں جنت کے لیے لے کے گیا. جو آج تارے چمکتے صرف اور صرف میرے نبی کے صدقے سے, آج جو چاند چمکتا ہے صرف اور صرف میرے نبی کے صدقے سے, آج جو سورج چمکتا ہے صرف اور صرف میرے نبی کے صدقے سے. تو جبریل علیہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیار ہو جاتے. جب تیار ہو جاتے تو حضور سواری لے کر حضور کے لیے, اب حضور اللہ کے محبوب ہے, جب حضور اللہ کے محبوب ہے, اللہ کے حبیب ہے, تو اللہ تعالیٰ بہت شاندار سواری تو بھیجے ہی ہے نا. تو حضور کو جو سواری لینے آئے ہیں وہ سواری کا نام تھا براق. وہ براق کس طرح کا تھا, اس کی وہ براق کی شکل جو تھی انسانوں جیسی شکل تھی. وہ براق کی انسانوں جیسی شکل تھی. کچڑ سے چھوٹا تھا اور گدھے سے وہ بڑا تھا. کچڑ سے چھوٹا تھا, گدھے سے وہ بڑا تھا. براق کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلتے تو جیسے ہی پیارے نبی جبریل علیہ السلام فرماتے اے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ براق پر چڑھ جائیے. جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب براق پر چڑھنے لگتے, چڑھتے رک جاتے. جب
चढ़ते चढ़ते रुक जाते हैं तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐ प्यारे नबी आप रुक क्यों गए, ऐ प्यारे नबी आप क्यों रुक क्यों गए। तो प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐ जिब्रील जब क़यामत के वक्त मेरे उम्मतियों को उठाया जाएगा तो अल्लाह ने फरमाया ना जब क़यामत के वक्त ऐ हबीब जब क़यामत के वक्त तुम्हारे उम्मतियों को उठाया जाएगा तो तुम्हारे उम्मतियों को लकड़ी से मारते हुए लेके जाएंगे, तुम्हारे उम्मतियों को लकड़ी से मारते हुए लेकर जाएंगे। पहले अल्लाह से कहो कि मुझसे ये वादा करे जब मेरे उम्मती बरोज़ से महशर के वक्त कब्रों से उठाए जाएंगे, जब बरोज़ से महशर के वक्त कब्रों से उठाए जाएंगे तो अल्लाह उन्हें हर किसी को बुराक अता करेगा, हर एक उम्मती को बुराक ज़रूर अता करेगा। तो अल्लाह ताला का हुक्म आता है ऐ मेरे हबीब मैंने आपकी दुआ कबूल की, ऐ मेरे हबीब मैंने आपकी दुआ कबूल की। जो तुम्हारे उम्मती तुमसे वफ़ादार रहेंगे, जो उम्मती तुम्हारे वफ़ादार रहेंगे उन सबको मैं बुराक में उन्हें जो उम्मती तुम्हारे वफ़ादार रहेंगे उन्हें मैं बुराक अता करूँगा, जो उम्मती तुम्हारे वफ़ादार रहेंगे हर एक उम्मती को बुराक अता करूँगा। ये देखिए हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान, ये देखिए हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान, ये आमिना की लाल की शान है, ये आमिना की लाल की शान है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान है, ये अहमद मुस्तफ़ा की शान है जो वो बुराक पर चढ़ते हुए भी सिर्फ और सिर्फ अपने उम्मत का सोचा, बुराक पर चढ़ते हुए वक्त भी सिर्फ अपनी उम्मत का सोचा, ना कि अपने इमाम हुसैन, ना कि अपने बीबी फातिमा, अपनी बेटी शहज़ादी बीबी फातिमा, किसी के लिए नहीं सोचा, सिर्फ सोचा सिर्फ अपने उम्मत के लिए सोचा। ये हमारे अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, ये हमारे प्यारे नबी है। आप लोग कहते कि हम हमारे नबी पे क्यों मरते, हम हमारे नबी पे इसलिए मरते, जब हमारे नबी दुनिया से तशरीफ़ लेकर गए थे तब भी हमारे नबी या रब्बी उम्मती कहते हुए दुनिया से गए थे, या रब्बी उम्मती कहते हुए हमारे नबी दुनिया से तशरीफ़ ले गए थे। जब नबी बुराक पर सबसे पहले जब घर से निकलते हैं नबी बुराक पर बैठते हैं, बुराक पर बैठ के मस्जिदुल हरम में 2 रकात नफिल अदा करते हैं। वो बुराक की रफ्तार किस तरह थी, वो बुराक की रफ्तार इस तरह थी जहाँ पे उसकी नज़र जाती वहाँ पे उसके कदम जाते, जहाँ पे वो बुराक की नज़र जाती वहाँ पे उसकी कदम जाती। इतनी शानदार सवारी अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ अपने महबूब का अता की, इतनी शानदार सवारी सिर्फ और सिर्फ अपने महबूब की अता की। अल्लाह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ने उन्हें ये सवारी अता की और हमारे नबी ने अपनी उम्मत के लिए भी ये सवारी मांग लिया, हमारे नबी को वो सवारी पसंद आई, इसलिए हमारे नबी ने अपनी उम्मत के लिए भी ये सवारी मांग लिया। जिस तरह बुलंद वाले मर्तबे वाले हमारे नबी है, जिस तरह हमारे नबी की शान है, अल्लाह ताला भी उनके लिए उसी तरह की सवारी भेजे और हमारे नबी ने अपनी उम्मत के लिए भी उसी तरह की सवारी पसंद की है। तो आइए नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। तो मस्जिदुल हरम में 2 रकात नमाज हमारे प्यारे नबी ने अदा की है। जब मस्जिदुल हरम में जब नमाज अदा करते तो बुराक फिर से चल पड़ते, जब हुजूर आसमान की तरफ उड़ने लगते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि हज़रत मूसा करीमुल्लाह जिसे कहा जाता है, हज़रत मूसा करीमुल्लाह जिसे कहा जाता है, वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज़ पढ़े, हुजूर ऊपर आसमान में से देख रहे हैं, बुराक की सवारी ऊंचाई से जब हुजूर जा रहे हैं ऊपर से देख रहे हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है, जो ऊपर से भी देख लेते हैं कि कब्र में कौन से नबी क्या कर रहे हैं, कब्र में उनका कौन सा उम्मती क्या कर रहा है। ये अल्लाह ताला ने ये शान और बुलंद वाला मर्तबा अदा किया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बुराक पर गए तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कब्र में नमाज अदा कर रहे हैं तो बुराक से जब मस्जिद अक्सा पहुंचा, जब मस्जिद अक्सा पहुंचा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब बुराक
मस्जिद उल अक्सा के तरफ जो पत्थर रखे हुए थे, अपने उंगली से वो पत्थरों में एक पत्थर में उंगली करते, वो उंगली से सुराख कर कर बुराक को रस्सी से वहीं पर बांधते। जब बांधते हैं तो जिब्रील अलैहिस्सलाम प्यारे नबी को मस्जिद उल अक्सा में लेके जाते। मस्जिद अक्सा में लेके जाते तो हुजूर क्या देखते, वहाँ पर भी मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद है। पहले तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने कब्र मुबारक में नमाज पढ़ रहे थे। जब हुजूर मस्जिद अक्सा है तो मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ भी है। वहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम है, वहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, वहाँ पर ज़िक्र अलैहिस्सलाम है, वहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम है, वहाँ पर सुलेमान अलैहिस्सलाम है। जितने अम्बिया अब तक दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, जितने हुजूर से पहले जितने अम्बिया दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, तमाम के तमाम अम्बिया वहाँ पे मौजूद थे। तमाम के तमाम अम्बिया मौजूद थे सिर्फ़ और सिर्फ नबी के इस्तेक़बाल के लिए। वहाँ पर तमाम के तमाम अम्बिया, जितने अम्बिया जब तक मस्जिद अक्सा में हुजूर हमारे खुदा का दीन पहुँचाने के लिए, खुदा अपने अल्लाह का इस्लाम पहुँचाने के लिए, दीन पहुँचाने के लिए जब तक मस्जिद अक्सा में आए जितने नबी, तमाम के तमाम अम्बिया हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस्तेक़बाल के लिए वहाँ पर थे। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम जितने नबियाँ दुनिया में आए, 1,24,000 जितने नबियाँ तमाम के तमाम वहाँ पर मौजूद थे। जैसे ही हमारे प्यारे नबी अंदर घुसते तो तमाम के तमाम नबियाँ वहाँ पर मौजूद होते। तो हुजूर जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते, ऐ प्यारे जिब्रील अलैहिस्सलाम जाते, जाकर अज़ान देते, मस्जिदुल अक्सा में अज़ान देते, अज़ान देकर अक़ामत देते। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोचते हैं कि नमाज कौन अदा करेगा। शायद इब्राहिम अलैहिस्सलाम अदा करेंगे, कोई सोचते कि मूसा अलैहिस्सलाम अदा करेंगे, फिर सोचते कि आदम अलैहिस्सलाम हम सबके बाप है, आदम अलैहिस्सलाम हम तमाम अम्बिया के बाप है आदम अलैहिस्सलाम, शायद आदम अलैहिस्सलाम ये नमाज अदा करेंगे। हुजूर का ख़यालात देखिए, हुजूर के ख़यालात देखिए, हमारे हुजूर की सोच देखिए, हमारे हुजूर का एहतराम देखिए। हालांकि आप हैं तमाम अम्बिया के सरदार, हालांकि आप हैं तमाम अम्बिया के सरदार, आदम से लेके ईसा से लेके मूसा से लेके इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेके सुलेमान अलैहिस्सलाम से लेके यूसुफ अलैहिस्सलाम तक तमाम अम्बिया के सरदार है। लेकिन फिर भी वो सोच रहे कि आदम अलैहिस्सलाम हम सबके अब्बा है, आदम अलैहिस्सलाम हम सबके बाप है, शायद वो जमात कर देंगे। लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम अक़ामत देकर आगे आकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर मुसल्ले पर लेके जाके फरमाते, ऐ मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये सब की भी ख्वाहिश है, ये सब नबियों की भी ख्वाहिश है कि आप इनकी जमात कराए, आप इनकी जमात कराए, आप इमाम बनकर सबको नमाज पढ़ाए। ये देखिए सब नबियों की शान, आप इनकी जमात कराए और आप नमाज पढ़ाए। नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जमात पढ़ाते, नमाज पढ़ाते। देखिए वो नमाज सबसे अलग थी, वो नमाज सबसे अलग थी और बहुत स्पेशल थी, क्योंकि नबियों के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम जितने भी अम्बिया अब तक दुनिया में, वो अम्बिया को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। वो नमाज बहुत अलग और स्पेशल थी। तो देखिए जिस तरह हमने बोला है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते हैं, नमाज पढ़ाकर सब नबियाँ उनकी प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हैं। सब नबियाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हैं। कोई कहते हैं कि मैं आदमुल्लाह हूँ, कोई कहते हैं मैं खलीलुल्लाह हूँ, कोई कहते हैं मैं रूह अल्लाह हूँ, कोई कहते हैं मैं रूह अल्लाह हूँ। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी अता सालना रहमतल लिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी अलसालना रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला ने मुझे तमाम मखलूक़ात की रहमत बनाकर भेजा, अल्लाह ने मुझे तमाम मखलूक़ात की रहमत बनाकर भेजा है। शुक्र है उस रब का, शुक्र है उस रब का जो रब ने मुझे तमाम मखलूक़ात की रहमत बनाकर भेजा है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाते हैं, आए मेरे प्यारे नबी, हम सब ने तो तकरीर बयां की, हम सब ने तो बहुत बड़ी बड़ी तकरीर की, लेकिन आपने आप तो दो लफ्ज़ में कमाल कर गए, आप तो दो लफ्ज़ में कमाल कर गए। प्यारे ने हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ प्यारे नबी, आप तो दो लफ्ज़ में ही कमाल कर गए। देखिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह तकरीर बयान किया करते, किस तरह तकरीर बयान किए। तो मस्जिद अक्सा से लेकर मस्जिद अक्सा से रवाना हुए,
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा से रवाना हुए। मस्जिद अक्सा से जब रवाना हुए तो पहले आसमान पर पहुँचे। पहले आसमान पर जो है सो हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मिला। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मिला और आदम अलैहिस्सलाम तो सबके अब्बा है, हम सबके अब्बा है। तो आदम अलैहिस्सलाम प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इस्तेकबाल किया और आदम अलैहिस्सलाम से हुजूर मिले। देखिए नाज़रीन, एक आसमान से दूसरे आसमान पे जाने के लिए 500 साल लगते हैं। एक आसमान से दूसरे आसमान पे जाने के लिए 500 साल लगते। तो दूसरे, तीसरे, चौथे, सातवें आसमान पे जाने कितने साल नहीं लगेंगे? मैं ये बता रहा हूँ कि एक आसमान से जाने 500 साल लगे, 500 साल लगते। लेकिन अल्लाह की रहमत और अल्लाह के महबूब जानते हैं कि एक आसमान से दूसरे आसमान पर जाने कितनी देर लगी, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके हबीब जानते हैं। ये हमें पता नहीं कि हुजूर कितनी देर में एक आसमान से दूसरे आसमान पर तशरीफ़ ले गए। तो दूसरे आसमान पर हुजूर जाते और जाकर जो है सो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से मिलते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से हुजूर मिलते हैं। दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम हुजूर का इस्तकबाल करते हैं। तीसरे आसमान पर जब हुजूर जाते हैं तो तीसरे आसमान पर जब जाते हैं तो हुजूर देखकर ये कहते हैं कि कौन है इतने खूबसूरत नबी, ये कौन है इतने खूबसूरत नबी, ये कौन है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है। ये कौन है इतने खूबसूरत नबी? देखिए वो जिसके नूर से चांद रोशन है, वो जिसके नूर से तारे रोशन है, वो जिसके नूर से जन्नत रोशन है, वो जिसके नूर से अर्श बरी रोशन है, वो जिसके नूर से दुनिया रोशन है। वो नबी पूछ रहे अरे जिसके नूर के सामने चांद तक फीका पड़ जाए, जिसके नूर के सामने सूरज फीका पड़ जाए, वो नबी पूछ रहे कि ये कौन है इतने खूबसूरत नबी? वो नबी पूछ रहे कि ये कौन है इतने खूबसूरत नबी? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी कह दिया, ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये और कोई नहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम है, ये और कोई नहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम है। फिर हुजूर यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलकर चौथे आसमान पर जाते हैं। चौथे आसमान पर हुजूर की हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। हारून अलैहिस्सलाम हुजूर का इस्तकबाल करते हैं, हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते हैं। फिर तो चौथे पे जो था हारून अलैहिस्सलाम मिलते हैं। पांचवें पे जो है इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम मिलते हैं। पांचवें आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम मिलते हैं, हुजूर का इस्तकबाल करते हैं और हुजूर उनसे भी मुलाकात करते हैं। छठवें आसमान पर जाते हैं। छठवें आसमान पर हजरत मूसा करीमुल्लाह, छठवें आसमान पर हजरत मूसा करीमुल्लाह, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मिलते। देखिए अभी तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने कब्र मुबारक में नमाज पढ़ रहे थे, फिर मस्जिदुल अक्सा में थे। अब छठवें आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम है। देखिए नबी हर जगह होते, तो मूसा अलैहिस्सलाम छठवें आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम इस्तकबाल करते हुजूर का, वहाँ पर हुजूर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते। फिर सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुजूर मिलते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हुजूर का इस्तकबाल करते हैं और हुजूर उनसे मिलते। फिर सातवें आसमान के बाद जब हुजूर जाते हैं तो वहाँ पर सिदरतुल मुंतहा, जहाँ पर सातवें आसमान के बाद जो है सो सिदरतुल मुंतहा है, सिदरतुल मुंतहा, जहाँ पर एक बहुत बड़ा दरख्त है, जो दरख्त का एक पत्ता है वो पत्ते के बराबर पूरी दुनिया होगी। जहाँ पर वो दरख्त का इतना बड़ा दरख्त है, वो दरख्त के एक पत्ते के बराबर भी ये दुनिया होगी। वो एक पत्ते के बराबर ये दुनिया है। तो देखिए वहाँ पर वो जो इतना बड़ा दरख्त है, वहाँ पर एक शाही कुर्सी डली हुई थी, वहाँ पर एक शाही तख्त रखा हुआ था और वो सिदरतुल मुंतहा और किसी
का मुकाम नहीं, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम का आखिरी मुकाम था। वो जिब्रील अलैहिस्सलाम का आखिरी मुकाम था जहाँ पर जिब्रील अलैहिस्सलाम बैठा करते थे। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम के मुकाम पर हुजूर जाते, हुजूर जब जाते हैं तो वहाँ पर तमाम फरिश्ते मौजूद हो जाते। जब हुजूर जाते तो जितने भी फरिश्ते थे तमाम के तमाम वहाँ पर खड़े जमा हो जाते, जमा होकर अल्लाह ताला के बारगाह में अर्ज़ करते, ऐ अल्लाह आज तूने तेरे हबीब को महराज की रात तूने अपने दीदार के लिए बुलाया, ऐ अल्लाह हमारी ये दुआ है कि तू आज हमें अपने महबूब के दीदार करा, ऐ अल्लाह हमारी इस दुआ को कबूल फरमा और तू हमें अपने महबूब के दीदार नसीब फरमा, और तू हमें अपने महबूब के दीदार नसीब फरमा। तो देखिए अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके फरिश्तों की भी दुआ कबूल करते हैं। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों अपने हबीब के सदके फरिश्तों के लिए भी दुआ करते हैं, और एक के बाद एक फरिश्ते जाते हैं, जाकर हुजूर पर दुरूद व सलाम भेजते हैं, हुजूर के दीदार करते हैं। एक के बाद एक फरिश्ते हुजूर के पास जाते हैं और हुजूर के दीदार करते। देखिए वो फरिश्ते जिसके इंसानों से भी ज़्यादा तादाद है, ना जाने वो कितना वक्त था, ना जाने वो कितना वक्त था, रात के कुछ हिस्से में वो कितना वक्त था ये हम भी नहीं जानते। वो अल्लाह और उसका अल्लाह के महबूब जानते हैं, वो अल्लाह और अल्लाह के महबूब बेहतर जानते। एक के बाद एक फरिश्ते उनके दीदार करते गए और दुरूद व सलाम भेजते गए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठ कर कहते हैं कि जिब्रील आगे चलो, जिब्रील आगे चलो। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे नबी मैं अब इसके आगे नहीं जा सकता, मैं अब इसके आगे नहीं जा सकता। अगर मैं 1 इंच राई के दाने के बराबर भी मैं आगे चल जाऊंगा, 1 इंच अगर राई के दाने के बराबर भी चल जाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे, मेरे पर जल जाएंगे, मेरे पर जल जाएंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते तो बताओ ठीक है, तो जिब्रील तुम्हारी क्या ख्वाहिश है ये बताओ, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है ये बताओ। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे नबी, ऐ मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बस मेरी एक ही ख्वाहिश है, बस मेरी एक ही ख्वाहिश है, जब आपके उम्मती बरोज़ महशर के वक्त, जब आपके उम्मती बरोज़ महशर के वक्त पुलसराब से जब आपके उम्मती पुलसराब से गुजरेंगे तो मुझे पैर बिछाने का मौका मिले, मुझे पैर बिछाने का मौका मिले। देखिए जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो सबसे ज़्यादा पसंद थी, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वही दुआ की कि जब आपके उम्मती पुलसराब से गुजरेंगे तो मुझे पैर बिछाने का मौका मिले। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे जिब्रील अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश लेकर अल्लाह ताला की बारगाह में रवाना होते। तो वहाँ जब हुजूर जब बारगाह में रवाना होते तो वहाँ पर बड़े बड़े एक से एक हुर परी, जो एक से एक हुर रहा करते थे, वहाँ पर एक से एक हुर रहा करते थे। हालांकि देखिए जब जिब्रील अलैहिस्सलाम जब वहाँ पर जहाँ जिब्रील सिदरतुल मुंतहा पे, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम का सफ़र ख़त्म हो गया था, जिब्रील अलैहिस्सलाम का सिदरतुल मुंतहा पे सफ़र ख़त्म हो गया था। तो वहाँ पे हुजूर को एक सवारी अता की गई, वहाँ पे और एक शानदार सवारी हुजूर को अता की गई। वो सवारी का नाम है रफ़ा, वो सवारी का नाम है रफ़ा, जो कि जिब्रील अलैहिस्सलाम की नज़र जहाँ जाती वो सवारी वहाँ जाती, जिब्रील अलैहिस्सलाम की नज़र जहाँ जाती, जिब्रील अलैहिस्सलाम की नज़र जहाँ जाती वो सवारी के कदम वहाँ जाते, वो सवारी के कदम वहाँ जाते। हुजूर वो सवारी पर बैठ कर जब जाते हैं तो एक से एक हुरा वहाँ पर बैठे हुए थे। तो एक हुर कहने लगी कि ऐ प्यारे नबी, ऐ नबी आज आप सबको बांट रहे, आज आप सबको दे रहे, आज आप सबको नेमतें दे रहे हैं, तो आज आप जा रहे हैं खुदा से मुलाकात के लिए, तो आज आप मुझे भी कुछ देते हुए जाए, आज आप मुझे भी कुछ देते हुए जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जाओ मैंने तुम्हें अपना बिलाल दिया है, जाओ मैंने तुम्हें अपना बिलाल दिया। देखिए वो हुजूर ने हुजूर से फरमाइश की है कि आप खुदा के दीदार के लिए जा रहे हैं, आप सबको नवाज रहे हैं तो मुझे भी नवाज कर जाए, ऐ नबी आप मुझे भी नवाज कर जाए। तो अल्लाह तारे नबी ने कहा कि जाओ मैं तुम्हें अपना बिलाल देता हूँ, जाओ मैं तुम्हें अपना बिलाल देता हूँ। तो वो हुर कहने लगी, क्या वो काला कलोटा बिलाल क्या वो मेरे हिस्से में था, क्या वो काला कलोटा वो बिलाल नौज़बिल्लाह वो, और कहने लगी कि वो काला बिलाल क्या मेरे हिस्से में था। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मेरे बिलाल को कह रहे हो, अभी तो मैंने मेरे बिलाल से पूछा ही नहीं कि वो तुम्हें पसंद करता है या नहीं, वो तुम्हें अपने निकाह में कबूल करेगा या नहीं, मैंने अभी अपने बिलाल से पूछा ही नहीं और तुम ये कह रहे हो। तो हुजूर
फलक अच्छा है ना कमर अच्छा है, फलक अच्छा है ना कमर अच्छा है ना हलाल अच्छा है, फलक अच्छा है ना कमर अच्छा है ना हलाल अच्छा है। तेरी नज़र नाबीना हो तो, तेरी नज़र नाबीना हो तो दोनों से मेरा बिलाल अच्छा है, अगर तेरी नज़र नाबीना हो तो दोनों से मेरा बिलाल अच्छा है। देखिए वो मेरे प्यारे नबी कहने लगते हैं ना फलक अच्छा है ना कमर अच्छा है, ना फलक अच्छा है ना कमर अच्छा है ना हलाल अच्छा है। तेरी नज़र अगर नाबीना हो, तेरी नज़र अगर नाबीना हो तो दोनों से मेरा बिलाल अच्छा है। वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। हुजूर जब कहते हुए जब अल्लाह की तरफ रवाना होते, जब हुजूर अल्लाह के दीदार करने के लिए रवाना होते, तो सातवें आसमानों के बाद जो है, सातवें आसमानों के बाद जो मुकाम है वो सातवें आसमानों के बाद जो मुकाम है वो लामका, वो लामका अर्श मोहल्ला अर्श ज़मीन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तय करते हुए जो सो लामका पर पहुँच जाते, लामका पर पहुँच जाते। लामका पर यहाँ ना आजू है ना बाजू है ना कुछ है, जैसे हम बैठे तो यहाँ पर आजू बाजू हमें जो दिखाई दे रहा है वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ना लामका उसे कहते हैं जहाँ पर कुछ ना आजू हो ना बाजू हो ना कुछ हो, सिर्फ और सिर्फ रोशनी हो। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नूर की नूर, सिर्फ नूर और नूर से रोशनी भरी हुई है, वहाँ पर नूर ही नूर छाया हुआ है ला मका पर। आला हज़रत फरमाते ला मका का लकी हमारा नबी, ला मका का लकी हमारा नबी, जो हर घर में ला मका का हमारा नबी, जो सारे मका का है हमारा नबी, जो ला मका तक गए हैं वो हमारे नबी, जो आज सारे घरों में रोशन है, जिसके नूर से जो रोशन है आज घर वो हमारा नबी, जिसके नूर से जो रोशन है घर वो हमारा नबी। ला मका का मका हमारा नबी, ला मका का मका हमारा नबी। आज तक आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, आज तक कोई ला मका तक नहीं पहुँचे। जब तक दुनिया में बाहर आते जब तक ला मका तक कोई नहीं पहुँच सके। सिर्फ और सिर्फ ये शर्फ और ये महराज की रात अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अता की है। ये सिर्फ और सिर्फ ये रात अल्लाह ताला ने अपने महबूब को अता की है। हुजूर देखते, हुजूर यहाँ वहाँ देखते तो सिर्फ और सिर्फ रोशनी देखते। हुजूर आगे जाते, थोड़ी दूर आगे जाते, फिर देखते हैं हुजूर को सिर्फ रोशनी नजर आती है। हुजूर फिर जाते आगे देखते तो रोशनी नजर आती है। फिर अल्लाह ताला की आवाज़ आती है, ऐ मेरे हबीब अब तुम जहाँ आ गए वहीं पर रुक जाओ। ऐ मेरे हबीब अब तुम जहाँ आ गए हो वहीं पर रुक जाओ। अब तुम्हारा खुदा खुद तुम्हारे पास चलते हुए आएगा, अब तुम्हारा खुदा खुद तुम्हारे पास चलते हुए आएगा। ऐ मेरे हबीब अब तुम वहीं पर रुक जाओ, अब तुम्हारे पास तुम्हारा खुदा खुद चलता हुआ आएगा। प्यारे नबी हमारे अल्लाह ताला हुजूर के पास आते हैं, हुजूर के पास आकर हुजूर के सीने से सीना लगाते हैं, हुजूर के सीने के तरफ आते हैं। हुजूर के कुछ दूरी पर हमारे अल्लाह ताला हुजूर से खड़े हुए और हुजूर अल्लाह को देख रहे, अल्लाह हुजूर को देख रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे हबीब मेरे लिए क्या लाए हो? देखिए जो खुदा सबके दिलों को जानता है, जो खुदा खुद नवाजने वाला है, जिसके मुकाबले में कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सारे जहां का अकेला मालिक है, सारे जहां का अकेला मालिक है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। हालांकि अल्लाह सब जानते हैं कि अपने हबीब उनके लिए क्या लाया है, अपना हबीब उनके लिए क्या लाया है। अल्लाह फिर भी कह रहे हैं, ऐ हबीब तुम मेरे लिए क्या लाए हो, ऐ हबीब तुम मेरे लिए क्या लाए हो? तो हमारे प्यारे नबी ने भी कह दिया, हमारे प्यारे नबी ने भी कह दिया, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे अल्लाह मैं आपके लिए आर्जी लाया हूँ, ऐ मेरे अल्लाह मैं आपके लिए आपके पास आज़िज़ी लाया हूँ, मेरे अल्लाह आपके पास मैं आज़िज़ी लाया हूँ। ऐ अल्लाह मैं आज़िज़ी करते जाऊँगा और तो मेरे दुआ को कबूल करता जा। ऐ अल्लाह मैं आज़िज़ी करता जाऊँगा और तू अपनी शान और इज्जत से मेरे दुआ को कबूल करता जा। अल्लाह ताला
پھر فرماتے اے حبیب بتاؤ، اے حبیب بتاؤ میں تمہیں کیا دوں، اے حبیب بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، اے حبیب جاؤ میں نے تمہاری آدھی امت کو، اے حبیب جاؤ میں نے تمہاری آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت عطا کر دی، اے حبیب جاؤ میں نے تمہاری آدھی امت کو جنت عطا کر دی۔ تو پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً انکار کر دیتے ہیں، فوراً انکار کر دیتے اے اللہ مجھے، فوراً انکار کر دیتے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ تم میری آدھی امت کو جنت عطا کریں گے، لیکن میری ایک عرضی ہے، میری ایک خواہش ہے، تم مجھے سفارش کا حق عطا کر، میرے اللہ تو مجھے سفارش کا حق عطا کر، میں ایک ایک امت کی سفارش کرتا جاؤں گا اور تو اسے جنت عطا کرتا جا، اے اللہ میں اپنے ایک ایک گناہگار کی سفارش کرتا جاؤں گا اور تو اسے جنت عطا کرتے جا۔ جب اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہونے لگی تو ہمارے پیارے نبی نے کہا اے میرے خدا ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو اور مجھے یہ باتیں چھوڑو اور مجھے میرے گناہگار امتی کی بات کرو، مجھے میرے گناہگار امتیوں کی بات کرو، مجھے میرے گناہگار امتیوں کی بات کرو۔ تو اللہ نے بھی کہہ دیا، اللہ نے بھی بڑے شان سے کہہ دیا، اور اللہ نے بھی اپنے حبیب کے جلوے کے برابر، اپنے حبیب کے جلووں کو دیکھتے ہوئے اپنی حبیب کے آدھی امت کو جنت عطا کر دی، اپنے حبیب کے جلووں کو دیکھتے ہوئے آدھی جنت عطا کر دی۔ لیکن ہمارے نبی کی بھی شان دیکھو، ہمارے نبی کی بلند والا شان بھی دیکھو، اس آمینہ کے لال کی شان بھی دیکھو، اس آمینہ کے لال کی شان بھی دیکھو۔ ہمارے پیارے نبی سے سفارش کا حق مانگ لیے، ہمارے نبی نے سفارش کا حق مانگ لیا، میرے گنہگار بندوں کے لیے میں سفارش کرتا جاؤں گا اور اللہ تو جنت عطا کرتا جا، میں اپنے گنہگار امتی کے لیے سفارش کرتا جاؤں گا اور تو جنت عطا کرتا جا۔ اللہ نے کہہ دیا اے حبیب جا میں نے تمہیں یہ حق بھی عطا کر دیا، یہ حق میں نے تمہیں عطا کر دیے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ حق پتہ ہو جاتا ہے تو بہت دیر نہ جانے وہ کتنے دیر بعد کیونکہ اللہ کے حبیب ہے، اللہ اپنے محبوب سے ملنے کے طلبگار تھے، نہ جانے وہ کتنی دیر گفتگو ہوئی، نہ جانے کتنی دیر بات چیت ہوئی، ہمیں تو نہیں پتہ۔ تو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب روانہ ہوتے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ سے کہتے ہیں اے میرے اللہ مجھے جانے دے، اے میرے رب مجھے جانے دے، وہاں پر میرا ابو بکر انتظار کر رہا ہے، اے میرے اللہ وہاں پر میرا ابو بکر انتظار کر رہا ہے، اے میرے اللہ وہاں پر میرا عمر انتظار کر رہا ہے، اے میرے اللہ وہاں پر میرا عثمان انتظار کر رہا ہے، اے اللہ تیرے حبیب کا واسطہ مجھے جانے دے، وہاں پر میرا علی انتظار کر رہا ہے، وہاں پر میرا علی انتظار کر رہا ہے، جب تک علی میرا دیدار نہ کرے، جب تک علی میرا دیدار نہ کرے اس کا دن نہیں چڑھتا میرے اللہ، جب تک علی میرے دیدار نہ کرے اس کا دن نہیں چڑھتا میرے اللہ، اے اللہ مجھے جانے دے میرے اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اجازت دے دے اے حبیب تم جاؤ، اے حبیب تم جاؤ، اے حبیب تم جاؤ۔ دیکھیے میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان، معراج کی رات گئے، خدا کے دیدار کرے، خدا کے دیدار کرے، خدا کے دیدار کرے۔ بی بی فاطمہ سب سے عزیز ہے، مولا علی سب سے عزیز ہے، حسن اور حسین ارے جن کو میرے پیارے نبی جان سے بھی زیادہ چاہتے ہیں، میرے پیارے نبی جسے جان سے بھی زیادہ چاہتے ہیں، ارے وہ نواسے جو جنتی جوانوں کے سردار ہے، وہ نواسے جو جنتی جوانوں کے سردار ہے، وہ بیٹی وہ شہزادی جو جنتی خواتین کی سردار ہے، جو جنتی خواتین کی سردار ہے، وہ بی بی فاطمہ، وہ بی بی فاطمہ۔ نہ ہمارے نبی نے اپنے لیے کچھ مانگا، نہ ہمارے نبی نے مولا علی کے لیے کچھ مانگا، نہ ہمارے نبی ابو بکر کے لیے کچھ مانگا، نہ ہمارے نبی عمر فاروق کے لیے کچھ مانگا، نہ ہمارے نبی عثمان غنی کے لیے کچھ مانگا، نہ ہمارے نبی جو جان سے بھی زیادہ پیار کرتے اپنے نوازوں کے لیے مانگا، اللہ سے صرف اور صرف مانگا تو اپنے گنہگار امت کے لیے مانگا، اللہ سے جو کچھ مانگا صرف اور صرف اپنی امت کے لیے مانگا، اپنی امت کے لیے مانگا۔ اگر ہمیں کوئی تحفہ دے، اگر کوئی ہم سے کہے کہ تمہیں مانگو، تم مانگو، ہم سے کیا مانگتے ہیں تو صرف ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں یا ہم اپنے ہمارے گھر والوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ دیکھیے اس نبی کی شان، دیکھیے اس مصطفیٰ کی شان، دیکھو اس مصطفیٰ کی شان، دیکھو اس میرے نبی کی شان۔ معراج کی رات بھی مانگا تو صرف اپنی امت کے لیے مانگا بھی تو صرف اپنی امت کے لیے مانگا، نہ اپنے لیے مانگا، نہ اپنے نواسوں کے لیے مانگا، نہ اپنے بیٹی کے لیے مانگا، صرف اور صرف امت کے لیے مانگا،
सिर्फ और सिर्फ उम्मत के लिए मांगा। आप लोग कहते हो कि नबी क्या है, हमारे नबी, आप लोग कहते कि नबी के लिए जान देते, हाँ हाँ हम नबी के लिए जान देंगे, हम हमारे नबी के लिए हम सर को कटा देंगे, लेकिन हम हमारे नबी का नाम झुकने नहीं देंगे, हम हमारे नबी का नाम झुकने नहीं देंगे, हम जान दे देंगे, हम अहले सुन्नत जान दे देंगे, लेकिन हमारे नबी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। हम अहले सुन्नत जान दे देंगे, नबी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, हम नबी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। हमारी जान है हमारा नबी, हमारी जान है हमारा नबी, ला मका का मकी है हमारा नबी, ला मका का मकी है हमारा नबी। जैसे जिस्म रूह के बिना अधूरा है, जैसे जिस्म रूह के बिना अधूरा है, वैसे हम हमारे नबी के बिना अधूरे हैं। हम अहले सुन्नत हमारे नबी के बिना अधूरे हैं। जैसे जिस्म में रूह नहीं तो जिस्म नहीं होता, जैसे जिस्म में रूह नहीं तो जिस्म नहीं होता। अहले सुन्नत अगर नबी नहीं तो अहले सुन्नत नहीं, अगर नबी नहीं तो अहले सुन्नत नहीं। जान है हमारा नबी, जान है हमारा नबी, शान है हमारा नबी, आला शान है हमारा नबी, आला मुकाम है हमारा नबी, आला मुकाम है हमारा नबी। हम जन्नत में भी जाएंगे तो सिर्फ नबी की बदौलत जाएंगे। हमें दुनिया में जो कुछ मिलेगा हमारे नबी की बदौलत मिलेगा। हमें नमाज़ें मिली नबी की बदौलत मिली, हमें कलमा तैयब मिला नबी की बदौलत मिला, हमें कलमा तैयब मिला नबी की बदौलत मिला। हम गुनहगार सियाकार है, हम खताकार हम बदकार है, हम गुनहगार हम सियाकार हम बदकार है, लेकिन हमारे नबी के गद्दार नहीं है, हम हमारे नबी की गद्दार नहीं है। हमारे नबी की शान, हमारे नबी की क्या शान है, हमारे नबी की क्या शान है, उनका आला मुकाम है, उनकी शान उनके मर्तबे और उनके रुतबे को सिर्फ मेरा खुदा जानता है। उनके रुतबे को सिर्फ खुदा और सिर्फ नबी जानते हैं। उनके रुतबे को नबी खुद और खुदा दोनों ही जानते हैं। तो जिस तरह हुजूर अल्लाह से मुलाकात करते हुए जब रवाना हुए तो अल्लाह ने उन्हें नमाज़ें अता की, अल्लाह ने उन्हें उन्हें कितनी नमाज़ें अता की? अल्लाह ने उन्हें 50 नमाज़ें अता की, अल्लाह ने उन्हें 50 नमाज़ें अता की। अल्लाह जब 50 नमाज़ें अता करे तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 50 नमाज़ें लेकर रवाना हो गए, 50 नमाज़ें लेकर रवाना हो गए। जब रवाना हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 6वें आसमान पर आए। जब हुजूर 6वें आसमान पर आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ऐ नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह ने क्या दिया तोहफे में? तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे 5 नमाज़ें अता की, 5 नमाज़ें मेरी उम्मत के लिए, तब 50 नमाज़ें मेरी उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने तोहफ़ा दी। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत इतनी नहीं पढ़ पाएगी, आपकी उम्मत इतनी नहीं पढ़ पाएगी, आप जाकर अल्लाह से कुछ कम करा ले, कुछ नमाज़ें अल्लाह से गुजारिश करे कि अल्लाह आप कुछ नमाज़ें कम कर दे। अल्लाह की बारगाह में गुजारिश करे कि अल्लाह इसमें से कुछ नमाज़ें कम कर दे। तो अल्लाह जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अल्लाह की बारगाह में जाते हैं तो अल्लाह ताला 50 नमाज़ों से 5 नमाज़ें कम करते और 45 नमाज़ें करते। 45 नमाज़ें लेकर फिर 6वें आसमान पर आते। मूसा अलैहिस्सलाम से फिर मुलाकात होती। मूसा अलैहिस्सलाम पूछते कि अब अल्लाह ताला ने कितनी नमाज़ें कम की है? नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने कितनी नमाज़ें कम की? तो प्यारे नबी फरमाते हैं अल्लाह ने 5 नमाज़ें कम की, 45 नमाज़ें। तो मूसा अलैहिस्सलाम फिर कहते हैं देखिए अल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दिल में बात अल्लाह ताला ने डाली, मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में बात अल्लाह ताला ने डाली। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, ऐ प्यारे नबी आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, आप जाकर और कुछ नमाज़ें कम करा ले। हुजूर फिर जाते अल्लाह से कहते कि आए अल्लाह और कुछ नमाज़ें कम कर दे। अल्लाह ताला फिर नमाज़ें और 5 नमाज़ें कम कर दे, 40 हो जाती है। फिर 6वें आसमान पर आते, फिर मूसा अलैहिस्सलाम कहते कि आपकी उम्मत इतनी नमाज नहीं पढ़ पाएगी। ऐसा ही 6वें आसमान से लेकर अल्लाह तक का सफ़र, मूसा अलैहिस्सलाम के 6वें आसमान से लेकर अल्लाह तक का सफ़र 9 बार प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 9 बार नमाज़ें कम कराने के लिए अल्लाह की बारगाह में गए और 50 नमाज़ों से 5 नमाज़ें अता की।
50 नमाजों से 5 नमाजें अता की। देखिए अल्लाह ताला भी जानते थे, अल्लाह ताला भी जानते थे कि मैं जितने नमाजें दूंगा, मैं नमाजें जितने तोहफे में दूंगा मेरा महबूब कबूल कर लेगा, मेरा महबूब कबूल कर लेगा। लेकिन उसकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, लेकिन उनकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। इसलिए अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात डाली। देखिए वो प्यारे नबी जिसने अल्लाह के दीदार किए, वो प्यारे नबी जिसने अल्लाह के दीदार करे, वो प्यारे नबी जिससे अल्लाह की आवाज़ सुनाई दी, वो प्यारे नबी जो अल्लाह के सामने रूबरू होकर गुफ्तगू करे। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में तमाम नबियाँ हैं, हुजूर से पहले मूसा अलैहिस्सलाम का रुतबा बड़ा था। जो अल्लाह से बात किया करते थे वो नबी मूसा अलैहिस्सलाम थे, जो अल्लाह से बात किया करते थे, जिस नबी को अल्लाह की आवाज़ सुने आया करती थी वो नबी हमारे मूसा अलैहिस्सलाम, वो नबी मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की आवाज़ सुनाई देती थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की आवाज़ सुनते थे, मूसा अल्लाह से गुफ्तगू करते तो अल्लाह से उन्हें मुलाकात का शौक़ हासिल हुआ, अल्लाह के दीदार के शौक़ हासिल हुए। अल्लाह ताला से वो दुआ करने लगे कि ऐ अल्लाह मुझे अपना दीदार कराओ, ऐ अल्लाह मुझे अपना दीदार कराओ। तो प्यारे अल्लाह तो मना कर देते कि आप मुझे नहीं देख सकते, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की दुआओं को देखकर अल्लाह ताला मान कर फरमाते ऐ मूसा तुम पहाड़ का क्या नाम मूसा अलैहिस्सलाम को पहाड़ के खिलाफ नहीं जाना। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला जो है सो मूसा अलैहिस्सलाम की दुआओं को कबूल करते हुए गारे तो ऊंचे पहाड़ पर बुलाते, मूसा अलैहिस्सलाम को ऊंची पहाड़ी पर बुलाते, ऊंची पहाड़ी पर बुला कर जैसे मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं मूसा अगर मेरे दीदार की छोटी सी बारीक सुई के बारीक जो नोक आती है, सुई की जो बारीक नोक आती है, वो नोक से भी बारीक अगर मेरे दीदार की नूर अगर ये पहाड़ अगर बर्दाश्त कर लेगा तो तुम मेरे दीदार कर सकते हो, तुम मेरे दीदार कर सकते हो। ये पहाड़ी अगर बर्दाश्त कर देंगे तो तुम मेरे दीदार कर सकते हो। जैसे ही सुई की नोक जो आती है बारीक, उससे भी बारीक जब हमारे अल्लाह ताला की नूर की रोशनी पड़ती है तो वहाँ पर वो पहाड़ वहाँ पर जलकर रेजा जाता है, वो पहाड़ वहाँ पे जलकर रेजा जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर बेहोश हो जाते। तो कुछ देर बाद होश आता है और अल्लाह ताला के सजदे में गिरते और अल्लाह से कहते तू बड़ा रहमानो रहीम है और तुझे देखने वाला कोई नहीं, दुनिया की आंखें तुझे कोई नहीं देख सकती है। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम जो है सो मुझे आपके जलवे देखना है, आपके दीदार करना है, आपके जलवे देखना है कहते हुए मूसा अलैहिस्सलाम 9 बार दुआ करते। मूसा अलैहिस्सलाम जो है तो 9 बार अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं। तो अल्लाह ताला अपने नबियों की दुआओं को रद्द नहीं करता, ना अपने बंदों की दुआओं को रद्द करता है। अल्लाह ताला कभी अल्लाह ताला दुआ जल्द कबूल कर लेते हैं तो कुछ दुआ देर से कबूल करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला नबियों के दुआओं को नोट कर रखते। अपने जलवे मूसा अलैहिस्सलाम को दिखाना था, इसलिए अल्लाह ताला ने जो है सो मेराज की रात मुकर्रर की थी। मेराज की रात मूसा अलैहिस्सलाम को भी खुदा के जलवे देखने मिल गए। हमारे मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के तरफ 5 नमाजें कर जब कम कराने के लिए भेज रहे थे तो प्यारे नबी ने भी 9 बार अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, 9 बार अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। जब प्यारे नबी अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो रहे थे तो अल्लाह अपने महबूब के जलवे देख रहे थे, जब हमारे नबी नमाजें कम कराने के लिए जा रहे थे तो अल्लाह अपने महबूब के जलवे देख रहे थे और मूसा अलैहिस्सलाम प्यारे नबी के अंदर अपने खुदा के जलवे देख रहे थे, हमारे नबी के अंदर खुदा के जलवे देख रहे थे। अरे क्या बताऊं उस नबी के बारे में, अल्लाह अपने महबूब के जलवे देख रहा है और मूसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी के अंदर खुदा के जलवे देख रहे हैं। मैं अपने महबूब के जलवे देखता जाऊंगा, ऐ मूसा मैं अपने महबूब के जलवे देखता जाऊंगा और तुम मेरे महबूब में मेरे जलवे देखना। मैं अपने महबूब के जलवे देखता जाऊंगा और तुम मेरे महबूब में
میرے جلوے دیکھنا، جو تم نے دعا مانگی لو آج قبول ہو گئی، جو تم نے دعا مانگی وہ آج قبول ہو گئی۔ میرے محبوب کے اندر میرے جلوے دیکھ لو، میرے محبوب کے اندر میرے جلوے دیکھ لو۔ لا مکہ کا مکی ہمارا نبی، لا مکہ کا مکی ہمارا نبی، کیا بتا اس بلند بالا نبی، جو کوئی نہیں گیا، جو آج تک کوئی نہیں گیا وہاں ہمارا نبی، جہاں کوئی نہیں گئے آج تک وہاں ہمارے نبی چلے گئے، جہاں کوئی نہیں گئے وہاں ہمارے نبی گئے۔ جنت بھی دیکھ لیا، دوزخ بھی دیکھ لیا، جنت بھی دیکھ لیا، دوزخ بھی دیکھ لیا۔ جنت میں ابو بکر کا گھر بھی دیکھ لیا، عثمان غنی کا بھی گھر دیکھ لیا، مولا علی کا بھی گھر دیکھ لیا۔ جب عمر فاروق کے گھر کی بات آئی تو جب حضور کا بہت من تھا دیکھنے کے لیے، پھر حضور نے سوچا عمر جلالی ہے، عمر تھوڑا جلالی ہے، عمر کے گھر میں عمر کی اجازت لے کر جانا چاہیے، عمر کے گھر میں عمر کی اجازت لے کر جانا چاہیے۔ دیکھیے لا مکہ کا مکی ہمارا نبی، اس آمنہ کے لال کے شان، اس آمنہ کے لال کے شان۔ تم کہتے ہو نبی خواب میں گئے، تم کہتے ہو نبی معراج کی رات خواب میں گئے، وہ نبی ہمارے طرح ہے، نبی ہمارے نبی بندوں کی طرح ہے۔ کوئی بندہ معراج جا کے تو بتائے، کوئی بندہ معراج جا کے تو بتائے، کوئی بندے میں اگر اتنی طاقت ہے تو اللہ کے دیدار کر کے بتائے، کوئی اگر بندے میں اتنی طاقت ہے تو اللہ کے دیدار کر کے بتائے۔ اگر نبی بندوں کی طرح تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیدار کا شرف حاصل کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے جب اللہ کی چھوٹی سی نور کی روشنی جب پہاڑ پہ پڑتی ہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندے میں اتنی طاقت ہے تو بتاؤ، معراج خواب میں جا کر بتاؤ، معراج خواب میں جا کر بتاؤ۔ نہیں 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 نہیں، اللہ نے صرف اور صرف یہ حق اپنے محبوب کو عطا کیا، اللہ نے یہ حق اپنے محبوب کو عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ ہمارے نبی کو کہتے کہ اللہ نبی دنیا میں نہیں ہے، نبی دکھتے کیوں نہیں ہے، نبی کیوں دکھتے نہیں ہے؟ جب نبی دنیا میں ہے تو دکھتے کیوں نہیں ہے؟ ہاں ہمارا نبی زندہ ہے، زندہ ہے تو واللہ، زندہ ہے واللہ، زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے زندہ ہے واللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، بریلی کے امام لکھتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ تمہارے آنکھوں پہ لال چشمہ لگا ہے اس لیے تمہیں نبی نظر نہیں آتے، تمہارے آنکھوں پہ لال چشمہ لگا ہے اس لیے تمہیں نبی نظر نہیں آتے۔ اگر تمہیں نبی کو دیکھنا ہے تو تمہیں سفید چشمہ لگانا ہوگا، اگر تمہیں نبی کو دیکھنا ہے تو ابو بکر، اگر تمہیں دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کے آنکھوں سے دیکھنا ہوگا، اگر تمہیں نبی کو دیکھنا ہے تو فاروق اعظم کے آنکھوں سے دیکھنا ہوگا، اگر تمہیں نبی کو دیکھنا ہے تو عثمان غنی کے آنکھوں سے دیکھنا ہوگا، اگر تمہیں نبی کو دیکھنا ہے تو مولا علی شیر خدا کے آنکھوں سے دیکھنا ہوگا، اگر تمہیں نبی کو دیکھنا ہے تو غوث اعظم کے آنکھوں سے دیکھنا ہوگا، اگر تمہیں نبی کو دیکھنا ہے تو خواجہ غریب نواز کے آنکھوں سے دیکھنا ہوگا، اگر تمہیں نبی کو دیکھنا ہے تو بریلی کے امام کے آنکھوں سے دیکھنا ہوگا، جو خود لکھے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ لاؤ اگر تمہیں طاقت ہے، اگر تمہیں ہمت ہے تو لاؤ اس بریلی کے امام کے جیسا امام لاؤ، اس بریلی کے امام کے جیسا امام لاؤ۔ اگر تمہیں اتنی طاقت ہے، اگر تمہارے قلم میں اتنی طاقت ہے تو اس بریلی کے امام کے جیسے اشعار لکھ کر بتاؤ، اس بریلی کے امام کے جیسے اشعار لکھ کر بتاؤ۔ اگر تمہیں نبی کو دیکھنا ہوگا تو بریلی کے امام کے آنکھوں سے دیکھنا ہوگا، تمہیں نبی کو دیکھنا ہوگا تو تاج شریعہ کے آنکھوں سے دیکھنا ہوگا، تمہیں نبی کو دیکھنا ہوگا تو مولا بابا کے آنکھوں سے دیکھنا ہوگا، اگر تمہیں نبی کو دیکھنا ہوگا تو اولیاء کے آنکھوں سے دیکھنا ہوگا۔ ایسے ہر کسی کو نبی نظر نہیں آتے، ایسے ہر کسی کو نبی نظر نہیں آتے۔ جو نبی کو زندہ کہتا ہے، جو نبی کو زندہ کہتا ہے اسے ہی نبی زندہ نظر آتے ہیں، جو نبی کو زندہ کہتا ہے اسے ہی نبی زندہ نظر آتے ہیں، جو نبی کو زندہ کہتا ہے اسے نبی زندہ نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نبی کو مردہ کہے وہ خود مردہ ہے، جو نبی کو مردہ کہے وہ خود مردہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بڑا جھپا ڈالنے کے آگے تو ہم انہیں نہیں کہتے، جو بڑا جھپا ڈالنے کے آگے ہم اسے امام نہیں کہتے، ہم اعلیٰ حضرت کو امام کہتے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کو امام کہتے ہیں، ہم غوث
आदम को इमाम कहते हैं, जो हमें नबी को जिंदा कहते हैं हम उसे इमाम कहते हैं, जो हमें नबी जिंदा होने की दलील देते हैं हम उसे इमाम कहते हैं। हमारे आला हजरत ने कहा, हमारे बरेली के इमाम ने कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से तू छुप जाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। क्या बताऊं उस नबी के बारे में। अरे मूसा अलैहिस्सलाम तो कब्र में नमाज पढ़ा करते थे। अरे मूसा अलैहिस्सलाम तो कब्र में नमाज पढ़ा करते थे। वो आमिना का लाल तो अपनी कब्र में जमाते कराया करते। वो आमिना का लाल, वो अल्लाह का हबीब, वो अल्लाह का महबूब अपनी कब्र में जमाते कराया करते हैं। उस नबी के शान के सदके जाए, उस नबी के शान के सदके जाए। बरेली के इमाम फिर से कहते हैं, क्या लिखूं उस नबी के बारे में, क्या लिखूं उस नबी के बारे में, क्या लिखूं उस नबी के बारे में। अगर कोई माँ ने ऐसा पैदा किया है तो लाकर बताए। उस बरेली के इमाम के जैसा अगर कोई माँ ने पैदा किया है तो लाकर बताए। कई शायरी महराज के वाक़िए, कई नबी के वाक़िए उस बरेली के इमाम ने शायरी में बना दिए। कई नबी के वाक़िए आला हजरत ने शायरी में तब्दील कर दिए। वो आला हजरत जो नबी के दीवाने हैं, वो आला हजरत जो सुन्नियों के इमाम है, वो आला हजरत जो सुन्नियों के इमाम है, जो नबी के महराज के वाक़िए शायरी में बदल दिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु आला हजरत फरमाते हैं, जितना जलवा नुमा हुज़ूर का अर्श पर जाना था, जितना जलवा नुमा हुज़ूर का अर्श पर जाना था, उससे कई ज़्यादा जलवा नमा हुज़ूर का अर्श से आने का सफ़र था। हुज़ूर का अर्श से ज़मीन पर आने का सफ़र था। ला मक्का तक है उजाला हमारा नबी। तो देखिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किस तरह शान है। हुज़ूर जब महराज से तशरीफ़ लेकर आए, तो हुज़ूर अपने जहाँ पर बुराक मस्जिद हरम में बुराक को छोड़ा गया, हुज़ूर को मस्जिद हरम में जब छोड़ा गया तो हुज़ूर जब घर पर आए तो हुज़ूर का बिस्तर गर्म था। मस्जिद हरम में हुज़ूर को जब छोड़ा गया, हुज़ूर अपने उम्मे हानी बहन के घर तशरीफ़ लेकर आए। जब घर पर तशरीफ़ लेकर आए तो हुज़ूर जब जा रहे थे, अब कितनी देर तक बिस्तर गर्म रहता है। जब इंसान होता है तो कितनी देर इंसान का बिस्तर गर्म रहता है, बस कुछ देर इंसान का बिस्तर गर्म रहता है। जब हुज़ूर घर पर तशरीफ़ लाए तो हुज़ूर का बिस्तर गर्म था और हुज़ूर के घर के दरवाजे की कुंडी हिल रही थी। ये उस मदीने वाले मुस्तफ़ा की शान है। जब हुज़ूर महराज से तशरीफ़ लाए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूसरे दिन सुबह सबको कहने लगे कि मैं महराज गया था। मैं तमाम सहाबा को कहने लगे कि मैं महराज गया था, मैंने अल्लाह के दीदार किए। तमाम सहाबा बैठे हुए थे। मैंने अबू बकर का भी घर देखा, मैंने उस्मान गनी का भी घर देखा, मैंने मौला अली का भी घर देखा। बस उमर का घर मेरा बहुत मन था उमर का घर देखने के लिए। फिर मैंने सोचा कि उमर जलाली है, उमर के घर को उमर की इजाज़त देकर जाएंगे तो अच्छा है। उमर ज़रा जलाली है, उमर के घर को उमर की इजाज़त लेकर जाएंगे कहकर मैं आ गया। तो हज़रत उमर चीख मारकर हुज़ूर के कदमों में गिर जाते। हज़रत उमर चीख मारकर कदमों में गिर जाते। महबूबा, अगर उमर को घर जन्नत में मिलेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके कदमों के सदक़े से मिलेगा। महबूबा, अगर आपको उमर को अगर घर मिलेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके कदमों के सदक़े से मिलेगा। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम महराज का वाक़या बयान करते तो वहाँ पे अबू जहल भी था, तमाम सहाबा कहने लगे, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे अल्लाह के महबूब, आप तो अकेले अल्लाह का दीदार कर आ गए। आप तो अकेले अल्लाह का दीदार कर आ गए। हमें भी बड़ा मन है अल्लाह का दीदार करे, हमारी भी बड़ी ख्वाहिश है अल्लाह का दीदार करे। तो नबी फरमाने लगते, क्या तुम्हें भी अल्लाह का दीदार करना है? क्या सच में तुम्हें भी अल्लाह के दीदार करना है? तो आओ तुम मेरा दीदार कर लो, तुम मुझे देख लो, तुम मेरे दीदार कर लो, अल्लाह के दीदार हो जाएगा। अल्लाह तुम्हें देख लेगा, तुम्हें मेरे चेहरे के सदक़े अल्लाह के दीदार हो जाएंगे और अल्लाह तुम्हें देख लेगा। ये उस आमिना के लाल की शान है। अरे वो उस आमिना के लाल की शान है। जब हुज़ूर दुनिया में नहीं लाए तो पेड़ उनको सलाम किया करते थे, पेड़ उनको सजदा किया करते थे।
پیڑ ان کو سجدہ کیا کرتے تھے، یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ تو ابو جہل کہنے لگتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، مسجد الحرم سے مسجد اقصی جانے کے لیے 1700 گھنٹے کا سفر ہے، 1700 گھنٹے کا سفر ہے مسجد حرم سے مسجد اقصی جانے کے لیے 1700 گھنٹے کا سفر ہے، آپ کس طرح گئے؟ حضور یہ کہتے کہ حضور میں مسجد اقصی ہی نہیں، ساتوں آسمان کی بھی سیر کرا ہوں، میں ساتوں آسمان کی بھی سیر کرا ہوں، اللہ کے بھی دیدار کرا ہوں۔ تو ابو جہل ہنس کر کہنے لگتا ہے یہ کہانیاں بنا رہے ہیں، یہ کہانیاں بنا رہے، ایک رات میں کوئی کیسے مسجد اقصی جا سکتا ہے، پھر ساتوں آسمان پر کیسے جا سکتا ہے، یہ کہانیاں بنا رہے، یہ کہانیاں بنا رہے۔ وہ کہہ کر حضور کا مذاق بنا کر چلے جاتا ہے، وہ حضور کا مذاق بنا کر ابو جہل جب چلے جاتا ہے تو ابو صدیق اکبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں جب دیر سے پہنچے تھے، محفل میں حضور کے محفل میں جا رہے تھے، تو راستے میں ابو جہل ملتا ہے تو راستے میں حضرت ابو بکر کو ابو جہل ملتا ہے۔ ابو جہل بڑا آ کر کہتا ہے کہ اے ابو بکر بھائی تم سے ایک سوال کرتا ہوں۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کرو، تم سے مجھ سے کیا سوال ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ راتوں رات اگر کوئی مسجد رات کے تھوڑے سے حصے میں اگر مسجد حرم سے لے کے مسجد اقصی تک کوئی جا سکتا ہے، تو ابو بکر صدیق کہنے لگتے ہیں کہ نہیں کوئی نہیں جا سکتا۔ تو ابو بکر وہ ہنستا ہے، جیسے ابو بکر صدیق کہتے تو وہ ہنستا ہے، تو وہ ہنسنے لگتا ہے تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ وہ کس نے کہا کہ مسجد حرم سے لے کے مسجد اقصی تک گئے؟ کس نے کہا مجھے بتاؤ، مسجد حرم سے لے کے مسجد اقصی تک ایک رات میں کس نے سفر کیا؟ کس نے کہا یہ مجھے بتاؤ؟ تو ابو جہل کہتا ہے کہ اور کوئی نہیں جو مکے میں جو نبوت کا اعلان کرتے ہیں، جسے تم اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسجد حرم سے لے کے مسجد اقصی تک کچھ حصے میں وہ سفر کر گئے۔ تو ابو بکر صدیق کہنے لگتے ہیں دوسروں کا تو مجھے پتہ نہیں، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا تو وہ حق اور سچ کہہ دیا، میرے نبی نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے، میرے مصطفیٰ نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے، اگر میرے نبی مجھ سے یہ کہے کہ میں ایک رات میں ساتوں آسمان کا سفر بھی طے کر دیا، ایک رات کے چھوٹے سے حصے میں حالانکہ ابو بکر صدیق کو تو پتہ ہی نہیں کہ حضور ابھی ساتوں آسمان کا سفر بھی طے کر دیے، ساتوں آسمان کو چھوڑو، عرش محلہ عرش بیڑی لا مکہ تک کا سفر چھوٹے سے حصے میں طے کر دیا۔ لیکن ابو بکر ابو جہل سے کہہ رہے اگر میرے نبی یہ کہہ دے کہ ساتوں آسمان کا سفر چھوٹے سے حصے میں نے طے کر دیا تب بھی میں سچ مانوں گا، کیونکہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حق اور سچ بات کیا کرتے۔ اگر مدینے والے مصطفیٰ نے کہا ہے تو یہ بالکل سچ ہے، مدینے والے مصطفیٰ نے کہا ہے تو یہ بالکل سچ ہے۔ ابو جہل جو ہے سو منڈی پھرا کر جو ہے غصے سے نکل جاتا ہے، منڈی ٹیڑھی کر کے جب نکل جاتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی بارگاہ میں تشریف لے کے جاتے، حضور کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے جانے سے پہلے ہی حضور کی بارگاہ میں جبریل امین آ جاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں جبریل امین آتے اور آ کر فرماتے ہیں اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے ابو بکر کی جو بات سنی ہے، اللہ کو ابو بکر کی بات بہت پسند آئی ہے، ابو بکر کی بات بہت پسند آئی ہے، اور ابو بکر کے لیے اللہ نے ایک لقب بھیجا ہے، ابو بکر کے لیے اللہ نے ایک لقب بھیجا ہے، وہ صدیق اکبر ہے، صدیق لقب کے معنی ہمیشہ سچ اور حق بات کو ماننا، صدیق کے معنی ہیں ہمیشہ سچ اور حق بات کو ماننا، یہ صدیق کے معنی، لقب صدیق کے معنی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اتنی پسند آئی کہ ابو بکر صدیق کے لیے صدیق اکبر کا لقب جنت سے بھیج دیا۔ اگر تمہیں عقیدہ بنانا ہے تو صدیق اکبر جیسا عقیدہ بناؤ، صدیق ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عقیدہ بناؤ۔ ہمارے نبی نے جو کہہ دیا تو زندہ ہے واللہ، ہمیں عقیدہ بنانا ہے تو عمر فاروق جیسا عقیدہ بناؤ، ہمیں عقیدہ بنانا ہے تو عثمان غنی جیسا عقیدہ بناؤ، ہمیں عقیدہ بنانا ہے تو شیر خدا جیسا عقیدہ بناؤ، ہمیں عقیدہ بنانا ہے تو وہ
11वीं वाले गौसे आजम जैसा यकीदा बनाओ। अगर तुम्हें यकीदा बनाना है तो ख्वाजा खाजगाह अजमेर वाले ख्वाजा गरीब नवाब जैसा यकीदा बनाओ। अगर तुम्हें यकीदा बनाना है तो आला हजरत जैसा यकीदा बनाओ। अगर तुम्हें यकीदा बनाना है तो औलिया अल्लाह जैसा यकीदा बनाओ, ना कि ये दुनिया वालों के जैसा यकीदा बनाओ। हमारे नबी जिंदा है, जिंदा रहेंगे, जिंदा है वल्लाह, जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरे नबी की शान बुलंद वाला है, मेरे नबी का आला मुकाम है, वो अल्लाह के महबूब है। ला मका का मकी है, ला मका का हमारा नबी है, ला मका का हमारा नबी है। हमारा नबी के जैसा कोई नबी नहीं, हमारे नबी के जैसा कोई नबी नहीं। ना जाने कितने आए कितने गए, ना जाने कितने आए कितने गए। आदम से लेके मूसा तक आए, मूसा से लेके इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक आए, ईसा अलैहिस्सलाम से लेके यहिया अलैहिस्सलाम तक आए, यहिया अलैहिस्सलाम से लेके याकूब अलैहिस्सलाम तक आए, याकूब अलैहिस्सलाम से लेके यूनुस अलैहिस्सलाम तक आए, यूनुस अलैहिस्सलाम से लेके यूसुफ अलैहिस्सलाम तक आए। ना जाने कितने नबी गए कितने नबी गए, लेकिन हमारे नबी जैसा ना कोई आया है ना कोई आया होगा। हमारे नबी जैसा कोई आया है ना कोई आया होगा, हमारे नबी जैसा कोई आया है ना कोई आया होगा। हश्र तक चलेगा उनका रुतबा, हश्र तक चलेगा उनका रुतबा, हश्र तक चलेगी उनकी हुकूमत, हश्र तक चलेगी उनकी हुकूमत, हश्र तक रहेगा उनका चर्चा, हश्र तक रहेगा उनका चर्चा, हश्र तक रहेगा उनका चर्चा। कमली वाले का झंडा ना झुका है ना झुका रहेगा, कमली वाले का झंडा ना झुका है ना झुका रहेगा। नाराए मुस्तफ़ा लगाते चलो, नाराए मुस्तफ़ा लगाते चलो, और आका के परचम को उठाकर चलो। आका के परचम में जो इज्जत है वो किसी में नहीं है, आका के परचम में जो इज्जत है वो किसी में नहीं है। ये दुनिया वाले इज्जत नहीं देंगे, ये दुनिया वाले सिर्फ और सिर्फ ज़लील और रुसवा करेंगे। जहाँ इज्जत है सिर्फ और सिर्फ मेरे आका के परचम में है, जहाँ इज्जत है सिर्फ और सिर्फ मेरे आका के नाम में है, जहाँ इज्जत है सिर्फ और सिर्फ मेरे आका के नारे में है। जो कोई नहीं देता वो मेरा नबी देता है, जो कोई नहीं देता मेरे नबी के सदके मेरा अल्लाह देता है, जो कोई नहीं नवाजता वो अल्लाह नवाजता है। मेरे नबी के सदके अल्लाह ताला सब कुछ अता करेगा, मेरे नबी के सदके अल्लाह ताला सब कुछ अता करेगा। अरे तुम मांगे तो देखो, तुम मांगे तो देखो, अरे नबी को वसीला बनाकर तो देखो, नबी को वसीला बनाकर तो देखो, अरे उस महराज वाले नबी को वसीला बनाकर तो देखो, अरे उस आमिना के लाल को वसीला बनाकर तो देखो। अल्लाह तुम्हारी दुआ जल्द कबूल करेगा अपने हबीब के सदके, अल्लाह तो अपनी तुम्हारी दुआ जल्द कबूल करेगा उस हबीब के सदके, उस आमिना के लाल के सदके कुर्बान जाए, उस आमिना के लाल की शान जाए। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल पति पति भूल भूल या रसूल, या रसूल, लब्बैक या रसूल, या रसूल, या रसूल, लब्बैक या रसूल। या रसूल। फर्श पे बैठकर मेरा जिक्र करने वालों, फर्श पे बैठकर मेरा जिक्र करने वालों, अर्श पे रब तुम्हारे तस्करे कर रहा है। फर्श पे बैठकर मेरे तस्करे करने वालों, अर्श पे बैठकर रब तुम्हारे तस्करे कर रहा है। इस करम का शुक्र कैसे करूं अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। मैंने सजाई थी सरकार की महफिल, मैंने सजाई थी सरकार की महफिल, रब ने मुझको हर गम से बरी कर दिया। मैंने सुभान अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। मैंने महराज की रात सजाई थी सरकार की महफिल, मैंने महराज की रात सजाई थी सरकार की महफिल, रब ने मुझको हर गम से बेदार कर दिया। सुभान अल्लाह। मैं गुनाहगार था, मैं सियाकार था, मैं बदअमाल था, मैं गुनाहगार था, मैं सियाकार था, मैं बदअमाल था, मगर मेरे मुस्तफ़ा ने मगर जन्नती करार दिया। मेरे मुस्तफ़ा ने मगर जन्नती करार दिया।
जो भी आए हैं महफिल सरकार में, जो भी आज आए हैं महफिल सरकार में, मिल गया ज़ियारत दरबार नबी का, मिल गया ज़ियारत दरबार नबी का। कोई सिद्दीक हुआ तो कोई फारूक हुआ, कोई सिद्दीक हुआ तो कोई फारूक हुआ, तो कोई उस्मान हुआ। लहम 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 है मुझ पे नबी की अता, लहम लहम है मुझ पे नबी की अता। मेरे दोस्तों मांगूं क्या मैं मेरे मौला से, और क्या मांगूं और मैं मौला से, क्या 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 मेरे खुदा ने मुझे कम दिया, क्या मेरे खुदा ने मुझे कम दिया। अपने महबूब का मुझे उम्मती करार दिया, अपने महबूब का मुझे उम्मती करार दिया। और क्या मांगूं मैं मेरे खुदा से, और क्या मांगूं मैं मेरे खुदा से, मेरे अल्लाह ने मुझे इतना अता किया, अपने महबूब का मुझे उम्मती बना लिया, अपने महबूब का मुझे उम्मती करार दिया। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है, ये उस आमिना के लाल की शान है। लोग कहते हैं कि महराज नबी ने ख्वाब में की है, जी नहीं, महराज नबी ने हकीकत में की है। महराज पर नबी बाहयात तशरीफ़ ले गए थे, नबी बाहयात जब नबी तशरीफ ले गए थे, नबी का जब सीना खोला गया था, नबी के सीने से खून नहीं, नबी के सीने से नूर टपक रहा था, नबी के सीने से नूर टपक रहा था। और सुन लो, नबी हम जैसे नहीं है, नबी नबी अल्लाह के हबीब है, नबी अल्लाह के हबीब है। ना कोई नबी के जैसा होगा, ना नबी के जैसा कोई आया होगा। हमारे नबी नबी है, नबी के जैसा कोई नहीं है। तो चलिए इसी के साथ सब लोग मिलकर पढ़ते हैं, शाहे तैयबा के नाम दो कदम साथ साथ, मेरे आका के नाम दो कदम साथ साथ। शाहे तैयबा के नाम दो कदम साथ साथ, मेरे आका के नाम दो कदम साथ साथ। मुस्कुराते चलो, मुस्कुराते चलो, गुनगुनाते चलो, मुस्कुराते चलो, नाराए या मोहम्मद लगाते चलो, गुनगुनाते चलो, मुस्कुराते चलो, नाराए या मोहम्मद लगाते चलो। शाहे तैयबा के नाम दो कदम साथ साथ, मेरे आका के नाम दो कदम साथ साथ, दो कदम साथ साथ। कारवाने मोहम्मद रुकेगा नहीं, कारवाने मोहम्मद रुकेगा नहीं, कमली वाले का झंडा झुकेगा नहीं, कारवाने मोहम्मद रुकेगा नहीं, कमली वाले का झंडा झुकेगा नहीं। शाहे तैयबा के नाम दो कदम साथ साथ, मेरे आका के नाम दो कदम साथ साथ। तो आइए, ऐसे ही बयान तो हो चुका है, नाज़िल हो चुकी है, हुजूर के शान में छोटा सा शेर बोलना हो। जो तुझे मुर्दा कहे वो खुद मुर्दा है रसूल अल्लाह, जो आपको मुर्दा कहे वो खुद मुर्दा है मेरे रसूल अल्लाह। आप जिंदा है वल्लाह, आप जिंदा है वल्लाह। मेरे मरने के बाद मुझे जन्नत भी अता होगी, मुझे मरने के बाद जन्नत भी अता होगी, तो सिर्फ आपके कदमों की बरकत से अता होगी। मुझे मरने के बाद जन्नत भी अता होगी, तो आपके कदमों से बरकत अता होगी। मैं कब्र में ये कह दूंगा, मैं कब्र में ये कह दूंगा, जब दुनिया में था तब भी जिंदा है वल्लाह, जिंदा है वल्लाह कहता था, और मरने के बाद भी मैं ये कहता हूँ, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से झुक जाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। किसको लगता है नबी जिंदा है? हम सबको लगता है नबी जिंदा है, और हर सुनने के लिए हमारा नबी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा। हाँ,